apart from being the most celebrated villain, not only in India but all across the world, as said by Mr. Steven Spielberg. But let's not forget the positive performances he put forth. A very big part of my journey in terms of learning is this special film Dashmi. नारी के सम्मान की बात करने के लिए हम राम राज्य की बात कर रहे हैं. Welcome to Pickle. My name is Pratham, and today we are going to talk about a film which is quite relevant. It is impactful. The message is quite solid, and the narrative looks absolutely compelling. Joining me now, the major force in the acting department, Vardhan Puri, who is featuring in this film, and of course, the captain of the ship, Shantanu sir, is right alongside me. Dashmi, and I've seen the trailer. The name itself says so many things. बट वन थिंग दैट हैज स्टक इन माई माइंड इज एक लाइन है फिल्म में, युग कोई भी हो राम राज्य तो आना ही है. आपकी फिल्म है सर, आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं. आपकी क्या डेफिनेशन है राम राज्य की? राम राज्य में महिलाओं का सम्मान हुआ था और माता सीता के अपहरण पर रावण को जो सज़ा दी गई थी ना, वो इसलिए नहीं दी गई थी कि माता सीता प्रभु राम की पत्नी थी. इसलिए था कि एक नारी का अपमान हुआ था. तो नारी का अपमान जब हुआ था तो रावण को जलाया गया और उस रावण को हम सदियों तक जला रहे. तो नारी के सम्मान की बात करने के लिए हम राम राज्य की बात कर रहे हैं. राम राज्य की परिभाषा मेरे लिए बस वही है जब अच्छाई की जीत होती है. मुझे लगता है कि जब पॉजिटिव फोर्सेस नेगेटिव फोर्सेस को क्रश करते हैं, मेरे लिए वही राम राज्य कहलाता है. सर, क्या आपके जहन में कोई ऐसा खास वाकया था या कोई खास किस्सा था जिसने आपको पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया ये फिल्म बनाने के लिए? एज आई सेड इन माई इंट्रोडक्शन दैट इट्स अ वेरी कंपेलिंग नैरेटिव. तो किसी ऐसे किस्से ने, कोई ऐसी वारदात ने आपको झंझोड़ा कि मुझे ये अभी लिखना ही चाहिए, इस पर फिल्म बननी चाहिए, दिस मैसेज हैज़ टू बी टेकन आउट देयर लाउडली, स्ट्रांगली एंड विद इम्पैक्ट? बहुत सारे वाक्य. बचपन से ही जब मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तब भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे. मेरे पिताजी राइटर थे, माँ टीचर है, तो सोशली हम लोग बहुत डिस्कशन होता था. तो वहाँ से चीज़ें बहुत तकलीफ देती थी. जो रेप के न्यूज़ आती थी जिसमें नाबालिग बच्चे हैं और रेप करने वाले बहुत पावरफुल लोग हैं, या समाज के कुछ ऐसे घटक है जिनको ऐसा लगता है कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और वो सरेआम छूट जाते. वो सब चीज़ें बहुत पेन करती थी. तो सही मौके की तलाश थी कि कब मौका आएगा कि मैं उसको नेशनल प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म को मैं लिख पाऊँ. और मुझे लगता है वो मौका मुझे 4 साल पहले मिला और मैंने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया और लकीली आज 2024 में हम रिलीज़ के करीब है. Vardhan, we have seen your transition as an actor. You have been around for quite a while. I interviewed last for your past film as well. How do you see this journey? And to be able to portray the character that you are portraying in this one, what changes did you make to your craft? Of course, we were talking about your acting रियाज और आपने कैसे एक्टिंग सीखी. आपके खून में एक्टिंग है मैं कहूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बाकायदा आता है आपके खून में, बिकॉज द काइंड ऑफ फैमिली दैट यू कम फ्रॉम. सो उसके बारे में कुछ बताएंगे? First of all, I'm very happy to meet you after a while. Ye Sali Aashiki was my debut and very special film to me. Journey's been really beautifully inspiring because after my first film, I have finished a number of films which all will release in this year. So there's a different kind of variety of subjects. There are some highly commercial entertainers, rom-com, there's horror, there's a thriller I'm doing. There are um, very exciting things coming up. But let me tell you, a very big part of my journey मेरे इस सफ़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा in terms of learning, in terms of playing a character, in terms of submitting to the vision of a filmmaker is this special film Dashmi. You know, Dashmi is the only film I'm doing which has an independent producer. And you know why?
because I feel like we have to celebrate independent producers. 3S Movies is Shantanu sir's vision. He is making this film on his own. He is making this film with all his entire courage, his confidence, his belief in this project. And I thought it's my job as an artist, as an actor, to just salute that bravery. To tell him that, sir, we are with you and make this film to the best of your capabilities and we will give 1000%. This is an ensemble cast. I am one of the actors in the film. We are around 7 to 8 characters in this film. और मैं यहाँ पे उन सारे एक्टर्स को रिप्रेजेंट करके ये कहूँगा कि हम सब ने इस फिल्म को सब कुछ दिया है, पर हमसे 5 गुना ज़्यादा सर ने दिया है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक एक्टर की जर्नी होती है, वो उसमें ज़रूरी है कि वो हर किस्म की फिल्में करे. उसमें ज़रूरी है कि वो कुछ हार्ड हिटिंग सब्जेक्ट्स करे, कुछ कमर्शियल फिल्में करे, कॉमेडीज़ भी करे, हॉरर करे, लव स्टोरीज़ करे, पर उनमें से वो एक जेम कम से कम वो साल में एक बार तो करे. और वो एक जेम वो महत्वपूर्ण फिल्म है जो हर भारतीय को देखनी ही चाहिए. ऐसी कुछ फिल्में होती है ना, जैसे एक मदर इंडिया है, जो मैं आगे जाकर जब अगर मेरे बच्चे होंगे, जब होंगे, मैं उनको कहूँगा यार मदर इंडिया देखना. मैं डेफिनेटली अपने परिवार वालों और फ्यूचर में अगर बच्चे हो उनको ज़रूर कहूँगा कि आप दशमी देखो. वो फिल्म है. इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या होता है यार? प्रोजेक्ट होता तो सर पहले सब सेट कर देते कि दिस इज़ द स्टूडियो, दिस इज़ द XYZ, ये ऐसे होगा, ये बजट होगा. इस फिल्म में कभी बजट की बात ही नहीं हुई, क्योंकि इस फिल्म को सर ने सब कुछ दे दिया है यार. बजट की बात नहीं हुई, सिर्फ एक ही बात होती थी, फिल्म की, स्टोरी की और कैरेक्टर की. तो ये जर्नी में, मेरी जर्नी में ये बहुत एक स्पेशल फिल्म है मेरे लिए. अगर आप जर्नी की बात करो, आज तो मैं दशमी की बात करना चाहूँगा. जो बाकी रिलीज़ होंगे उसमें उन फिल्मों की बात करेंगे, पर आज मैं बस प्रथम भाई, मैं सिर्फ कहूँगा कि दिस इज़ very special to the entire cast and myself because of what he's put into it. I just have one question each as I conclude this interview. आपके फिल्म में एक जो एलिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बखूबी से दिख रहा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग अ वेरी अर्जेंट फिल्म, आई वुड से, इसका टॉपिक काफ़ी अर्जेंट है, फिर भी कहीं भी मुझे वायलेंस का एक तिनका भी नहीं दिखा. उसका जो एस्थेटिक है वो काफ़ी साफ़ है. आपने कहा मैंने अपने एक्टर को पहले क्लाइमैक्स सुनाया, पहले ये सुनो बाद में कहानी सुनो. इसके पीछे की क्या कहानी है और वो जो एस्थेटिक है कि कहाँ पर मुझे रुकना चाहिए, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? सबसे पहले तो मैंने ये फिल्म लिखते समय ही अपने आप से वादा किया था कि मैं ये नहीं करूँगा. जो रुकने की बात तो बहुत दूर की बात है, मैंने वो चीज़ शुरू ही नहीं की जिस पे रुकूँ. मैंने आपसे अपने आप से कहा था कि अगर ये सब्जेक्ट जाएगा तो हर एक फैमिली, हर एक बच्चा जो चीज़ों को समझता है, हर एक इंसान ने ये फिल्म देखनी चाहिए. तो ये कभी नहीं था कि मुझे यहाँ रुकना है, मुझे ये नहीं करना है, ये क्लियर था. जिस वजह से मैंने फिल्म का टॉपिक रेप होने के बावजूद उस वजह ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है कि फैमिली के साथ बैठ के आपको उस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत पड़े. आपको मुद्दे से भटकाने की कोशिश बिल्कुल नहीं हुई है. सो ये जो था वो बहुत ज़रूरी था कि इस सब्जेक्ट को मैं प्यार से और सही ढंग से हैंडल करूं. तो वो वेरी फर्स्ट डे से क्लियर था राइटिंग स्टेज पे. और ये मुद्दा इतना ज़रूरी है, एकदम बहुत तकलीफ़दायी टॉपिक है ये, कि क्या करना चाहिए ऐसे लोगों का. मतलब ये पेन जो है ना, एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक बेटा होने के नाते और एक इंसान होने के नाते मुझे बहुत तकलीफ़ देता है. जो पेन मैंने महसूस किया है फिल्म शूट करते दौरान भी,
जो गाना आज आप लोगों ने देखा है, वो गाना हम लोग का शूट होना था 2 दिन में। उस गाने को हमको 7 दिन लगे। उसकी वजह ये थी, जब भी वो गाने का एक शॉट होता था ना, इंटायर क्रू रोता था, हम लोग को आधा घंटे का ब्रेक लेना पड़ता था। सो सभी ने अपना 100% दिया और हम इस फिल्म से हमारी आत्मा से जुड़े हैं। एज ए एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सो हर कोई इससे दिल से जुड़ेगा। और मैं हिंदुस्तान की आत्मा की बात कर रहा हूँ और मेरे आत्मा से कर रहा हूँ। Of course, my last question, Vardhan. And through this question, I want to unearth certain elements about you as an actor and the family, of course, you come from. For a role as intense as this one, your grandfather was at another spectrum altogether, right? I mean, we have seen him, and of course, that was the requirement of the role. The woman he would flirt around with, or not being nice to them, and you are at the opposite end of the spectrum. तो आपने जब ये डिस्कस किया होगा परिवार के साथ, तो ये नहीं कहा एक दादाजी ने वो एक्सट्रीम छुआ था, अब जो बेटा है वो ये एक्सट्रीम छू रहा है, एंड दैट इज द वैरायटी वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग कैरेक्टर्स, ऑफ कोर्स. एंड व्हाट अ ब्रिलियंट जेंटलमैन ही वाज. साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगा, व्हाट key lessons have you learned from his craft when you see him on the big screen as well as when you interacted with him as a grandchild? That's a wonderful question. Of course, two different ends of the spectrum. But let me tell you that apart from being the most celebrated villain, not only in India but all across the world, as said by Mr. Steven Spielberg himself. I'm sorry I'm bragging because I'm very proud of him and he's my god. So, you brag about your god. So, yeah, of course, he is by far one of the greatest, if not the greatest villain in the world. I think he is. But let's not forget the positive performances he put forth. Some of the most memorable characters he's done. Of course, he's an actor. और एक आर्टिस्ट का काम होता है कि जो रोल उन्हें दिया जाए उसको बखूबी निभाना. मैंने बस वही किया है. मैंने कोशिश वही की है. अब ऑडियंस तय करेगी कि कैसा काम हुआ है हमारा, पर जो कैरेक्टर सर ने मुझे दिया मैंने उसे वैसे निभाया. अगर मैं किसी फिल्म में पॉजिटिव प्ले कर रहा हूँ तो मैं अपने दिल से पॉजिटिव बनता हूँ. अगर किसी फिल्म में मुझे नेगेटिव करने का चांस मिले फ्यूचर में तो मैं दिल से विलनी प्रकट करूँगा. तो मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम है दिल से एक्टिंग करना, कैरेक्टर में बिल्कुल ढल जाना और डायरेक्टर के विजन से निकाह कर लेना या शादी कर लेना. तो बट आई थिंक it's amazing that right now in the current scenario the villain is being celebrated as much as the hero. True. If you see, the badass characters are being celebrated like anything. Whether it's Mogambo from Mr. India or अभी अगर recent films की बात करूँ तो what Bobby sir has done, it's a sort of resurgence. It's a sort of just a different element of his career altogether, and it's bigger than his debut. It's bigger than anything he's ever done. But watching that baddie on the big screen and the same baddie is operating around you as your dada, Ji. what was it like? He was the most gentle person in the world. He used to treat us with so much love, and I've never heard him. उन्होंने शायद घर पे अपनी आवाज़ ऊंची करके बात भी नहीं किया था उन्होंने. वो इतने प्यार से रहते थे, इतना सम्मान देते थे सबको. उनके दिल में इतनी जगह थी सबके लिए. हमें समझ नहीं आता था कि ये वही इंसान है जो भयानक विलन बनते हैं स्क्रीन पे. तो मुझे लगता था कि वो इंसान कोई और है और मेरे दादाजी कोई और है. तो दैट इज़ आई थिंक द मार्क ऑफ अ fabulous performer. Really one of the greatest actors I've ever witnessed in real life and on screen. और अगर आप पूछो मैंने क्या सीखा है उनसे अबाउट द क्राफ्ट, मैंने ये सीखा कि जब आप थिएटर से आते हो, क्योंकि उनके रूट्स भी थिएटर से, और उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं भी थिएटर से जुड़ूँ और उसके बाद ही फिल्म्स में कदम रखूँ. तो उन्होंने कहा था कि जब आप थिएटर एक्टर होते हो और जब आप ट्रांजिशन करते हो सिनेमा में, तो हमेशा डिसिप्लिन जो है आपका वो थिएटर वाला ही रखें आप. पार्टीज वार्टी से जितने दूर रह सको रहे.
ये सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, दारू, ये सब से बहुत दूर रहे। ये सब सिर्फ हानिकारक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि थिएटर में हम इतनी रिहर्सल करते हैं, फिल्म्स में जाके सबको लगता है कि यार टेक्स होते हैं, हमें मौके मिलते हैं, तो रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि रिहर्सल्स आपका टूल है एज एन एक्टर। रिहर्सल्स का पूरा फ़ायदा उठाए, उसका लुत्फ़ उठाए, और जब आप रिहर्सल करेंगे तभी जाके आप परफेक्शन की ओर बढ़ सकोगे, कोशिश कर पाओगे। तो रिहर्सल्स पे बहुत ज़ोर दीजिए। ये सीखा है मैंने, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। उन्होंने कहा था कि पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन के बिना टैलेंट का कोई काम नहीं है। टैलेंट इज़ अ स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स। Many people are talented, but you can be consistent only if you are consistent, if you're disciplined. These are the things I learned. All these things will reflect through your performance in Dashmi, which is a solid narrative, a compelling one. We are looking forward to this one. I hope you achieve what you want to achieve with this film, as far as message goes, as far as cinematic experience goes. Thank you.